Okay, so the recording has started now. Today, or rather in this week, we are going to continue with chapter number 12. And the topics which we are going to cover in this week are basically these two topics which we are going to cover. The first one is the motion of a projectile, which we started last week. And we did solve maybe one or two examples last week, but in this week we are going to solve some problems from the exercise. And then in tomorrow's lecture, today we are going to cover to complete this motion of a projectile. That is, we are going to solve some problems from the exercise. And inshallah, in tomorrow's lecture, we are going to completely cover the kinematics of a particle which is traveling along a curved path and how to develop its kinematics in terms of its normal and tangential coordinate system. Meanwhile, जब तक बाकी students join करते हैं, just a quick review of last week lectures, motion of a projectile. Projectile motion में हमने किया क्या था कि we considered a particle which is being launched with some initial velocity at some point having coordinates x0 and y0, and that projectile follows some trajectory, और उसमें फिर हमने इसके motion को subdivide कर लिया था into its two component motions. That is, we divided it into its horizontal component motion and vertical component motion. दूसरा, चूंकि throughout the motion of a projectile, since it is under a constant downward deceleration या acceleration due to gravity, तो हमने किया क्या था कि हमने इस पे constant acceleration equations जो है वो apply की थी. While applying that constant acceleration equations, जब हम इन equations को horizontal motion पे apply कर रहे थे, तो हमने देखा था कि उसमें दो significant equations हमारे सामने आई थी. The first one was कि throughout the motion of that projectile, the x component of velocity would remain constant. That is, जितने भी आप x velocity के साथ उसको launch करेंगे, वो x component of velocity जो है वो constant रहेगा. वजह क्या है कि चूंकि x direction में there is no acceleration acting along the x-axis, therefore there shouldn't be any change in velocity as far as this x component of velocity is concerned. So x component of velocity आपका throughout projectile motion के constant रहता है. दूसरी इक्वेशन जो थी वो इक्वेशन थी रेंज के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते थे, x इक्वल टू x नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी. सो इसमें बेसिकली x माइनस एक्स नॉट एक तरह से आपको वो रेंज दे रहा होता था जिस तक इस प्रोजेक्टाइल ने x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किया है. सो व्हेनेवर इन सम प्रॉब्लम यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, you can use that equation which is x equal to x naught plus v naught x t. लेकिन इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए आपको ना सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट पता होना चाहिए बल्कि साथ साथ टाइम भी पता होना चाहिए. इन केस के टाइम ऑफ फ्लाइट आपको नोन नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए फिर आप वर्टिकल मोशन वाली जो तीन इक्वेशंस हैं उनमें से जो भी सिग्निफिकेंट इक्वेशन बनती है आपके डाटा को देखते हुए आप वो अप्लाई कर सकते हैं. तो वर्टिकल मोशन वाली जो तीन इक्वेशंस थी उसमें आप टाइम के लिए भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उनको मैक्सिमम हाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उनको फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर आपने डिटरमिन करना है तो उसके लिए भी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है. तो ये वो चार इक्वेशंस थी जिसकी मदद से आप किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो है वो एनालिसिस कर सकते थे. लास्ट टाइम हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स पे इन इक्वेशंस को अप्लाई किया था. आज हम एक्सरसाइज के 2 या 3 प्रॉब्लम्स पे इसको जो है वो अप्लाई करेंगे. और आज का हमारा जो टॉपिक है या आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से होगा जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे एक्सरसाइज की. और कल का जो हमारा लेक्चर है 2 घंटे का, उसमें हम ये वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली कवर करेंगे जिसमें हम इसकी थ्योरी भी देखेंगे और साथ साथ कुछ जो है वो इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स भी जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे. सो प्रोबेबली ये वाला वीक हमारा इन 2 टॉपिक्स पे होगा और जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों टॉपिक्स को किसी तरह कवर किया जा सके. सो बाय द एंड ऑफ 5th वीक जो कि नेक्स्ट वीक है हमारा, ये चैप्टर नंबर 12 जो है वो खत्म हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगी और फिर हम जो है वो काइनेटिक्स की बात करेंगे. ओके, स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, लेट मी move on to the next slide. Okay, so starting with today's lecture, we are going to solve some exercise problems and we are going to start with problem 12-105 जिसमें हो क्या रहा है कि एक particle है which is being launched from point A with a velocity having a magnitude of 15 meters per second. So at point A, this projectile is being launched with a speed of 15 meters per second at an angle of theta A, which is an unknown here. So theta A या angle जिसके ऊपर ये आप launch कर रहे हैं projectile को, it is unknown to you at this point. You need to determine this angle theta A so that the ball reaches its maximum height once it is at point
C. तो आपने वो एंगल डिटरमिन करना है कि जब आप उस एंगल पे इसको फेंकें तो ये बॉल जो है वो पॉइंट C पे जाके मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन कर ले. मोरोवर यू आल्सो नीड टू डिटरमिन द डिस्टेंस D के कितने डिस्टेंस पे जाके ये बॉल जो है वो थ्रो की जाएगी इस हाउस से, वो आपने डिटरमिन करनी है. सो द सेकंड अननोन which is involved here is the distance D. ये आपने जो है वो डिटरमिन करना है. तो दो चीजें, वन इज द एंगल थीटा ए, द अदर वन इज द डिस्टेंस D, जितने कि इस बांध से, इस हाउस से कितनी दूर खड़े होकर इस बॉल को जो है वो थ्रो किया जाए तो वो मैक्सिमम हाइट पॉइंट C के ऊपर जो है वो अटेन करेगी. Okay, before moving on to the solution, we need to define the origin at some convenient point. So either that convenient point, generally वो convenient point हमारा या तो initial या start point होता है, or it may be the final point. So defining the origin at the initial point here. So हमने origin सबसे पहले point A जो है उसके ऊपर define कर लिया. So once we have defined this origin at point A, वो कौन सी इक्वेशंस होंगी जो कि एक तरह से हमें सोल्यूशन दे रही होंगी. एनी वन वॉलंटियर जो कि थोड़ा सा जवाब देना चाहे कि किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं. प्लीज़ जो जवाब देना चाहता है प्लीज़ रेज योर हैंड, जो चाहता है कि मैं थोड़ा सा बता सकूं इसका सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे. ओरिजिन हमने ए पे डिफाइन कर लिया, थीटा ए और डिस्टेंस डी हम कैसे डिटरमिन करेंगे. जी, इनपुट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. कोई एक स्टूडेंट जो कि जवाब देना चाह रहा है प्लीज़ रेज योर हैंड, या मैंने शायद आपको परमिशन दी हुई है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और जवाब दे सकते हैं. जी, एनीवन वॉलंटियर स्टूडेंट? मोहम्मद हसन खान. यस सर. जी, कैसे ये सोल्यूशन किया जाएगा? सर डिस्टेंस डी के लिए तो हम आई गेस रेंज का लगा सकते हैं. ओके, अगर हम रेंज की इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें तो इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दोनों इन्वॉल्व हैं, और इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट के लिए वी नीड टू फाइंड थीटा ए फर्स्ट, और टाइम भी हमें अननोन है. तो इट मींस कि थीटा और टी मालूम होगा तो मैं रेंज वाली इक्वेशन लगा सकता हूँ. ओके, आप अपना माइक म्यूट कर लें. नईम मीर कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? एक्सक्यूज मी सर, मैक्सिमम हाइट वाले लगा सकते हैं. मैक्सिमम हाइट. तारिक शाह, मैक्सिमम हाइट वाला हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे और उससे हमें क्या मिलेगा? जी तारिक, मैक्सिमम हाइट से हमें क्या मिलेगा वो फार्मूला को? एक तो सबसे पहली बात वो इक्वेशन है कौन सी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए दो इक्वेशन मौजूद हैं जिसमें y और y0 आ रहा था. तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे और उससे हमें मिलेगा क्या? सर y0 वाला जिसमें इनिशियल कंडीशंस और थीटा के बगैर. ओके, सो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं. बड़ी हद तक ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज 12-105, हमने ओरिजिन डिफाइन कर दिया एट पॉइंट ए के ऊपर, और ओरिजिन डिफाइन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसिडर द वर्टिकल मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल. क्योंकि जिस तरह अभी बात हुई थी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो हमें दो चीज़ें चाहिए, वो अननोन है. सो कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल एंड टेकिंग द पॉजिटिव एक्सिस अपवर्ड, जो इक्वेशन हमने अप्लाई की है, जिस तरह अभी तारिक ने कहा था, हम वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट वाई स्क्वायर प्लस 2ac y माइनस वाई नॉट वाला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमें नोन हैं. मसलन सबसे पहली बात कि जब वो पॉइंट C तक पहुंचेगा, इसमें वी वाई किसको रिप्रेजेंट करे? इट रिप्रेजेंट्स द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द फाइनल पॉइंट. सिंस द फाइनल पॉइंट हियर इज पॉइंट C which is the point of maximum height, so at that point the y component of velocity will momentarily be equal to 0. So that's why हमने जो vy की वैल्यू है उसको 0 ले लिए इस इक्वेशन में. v नॉट y की अगर हम बात करें तो हमें मैग्नीट्यूड तो पता है v नॉट का विच इज 15, एंगल अननोन है तो हमने उसका y कंपोनेंट कंसिडर कर लिया विच इज 15 sin थीटा. सो दैट वुड बी 15 sin थीटा स्क्वायर 2 into 9.81 with a negative sign and y minus y naught. तो y minus y naught की अगर हम बात करें तो since we have defined our origin at point A, तो y naught तो हमारा 0 हो गया which is this y naught. जहाँ तक ताल्लुक y का है तो y is basically this distance, जो कि अगर हम ज्योमेट्री से देखें this is 8 units, this is 1 unit, so y would become 8 minus 1 which is equal to 7 units. तो यहाँ से हमें y coordinate मिल जाएगा of the final point which is point C here. So once we solve here
theta A would comes out to be 51.38 degrees. So at this theta A, when you throw this ball at a speed of 15 meters per second, it would reach to its maximum height at point C. तो जहां तक ताल्लुक थीटा का है वो तो हमने डिटरमिन कर लिया. दूसरा जो अभी बात हुई थी कि रेंज वाली जब हम इक्वेशन लगाते हैं तो चूंकि हमें टाइम की भी जरूरत होगी, तो टाइम के लिए फिर आपके पास चॉइस है. आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर लें, आप चाहें तो ये फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लें. इट इज टोटली अप टू यू. Vy इक्वल टू V नॉट वाई प्लस GT. सो इसमें Vy अगेन चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट C की y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को, वो हमने 0 ले ली है. V नॉट y जो है इट इज गोइंग टू बी द इनिशियल वेलोसिटीज y कंपोनेंट विच इज 15 sin थीटा, और g की वैल्यू आपको पता है. सो वंस यू सॉल्व इट, द टाइम ऑफ फ्लाइट वुड कम्स आउट टू बी 1.196 सेकेंड. सो इतना टाइम ये बॉल लेगी फ्रॉम रीचिंग पॉइंट A to point C. Now once you have determined this theta A, you have determined this time of flight, so now you can go to horizontal motion and you can apply that range equation which is x equal to x naught V naught xt. इसमें x क्या हो जाएगा, चूंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, सो फाइनल पॉइंट आपके पास पॉइंट C आ रहा था, तो ये बेसिकली आपके पास जो है ये x हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू d+4. सो x की जगह आपने d+4 लिख लिया है. x नॉट आपके पास इनिशियल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, और चूंकि आपने ओरिजिन भी वहीं डिफाइन किया हुआ है तो वो 0 हो जाएगा. v नॉट x आपने अभी फाइंड कर लिया है एंगल थीटा, तो वो v नॉट x आपका 15 cos ऑफ 51.38 हो जाएगा. टाइम ऑफ फ्लाइट भी ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं which is 1.196. So once you solve it, the distance d comes out to be 7.197 meter. So इतनी दूर खड़े होके अगर इस घर से इस बॉल को फेंका जाए इतने एंगल पे, इतनी उस पे, तो ये पॉइंट C मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके जो है वो अटेन हो जाएगा. So this is how you can solve this particular problem. Now if any one of you have any queries relevant to this problem, please आप अपनी क्यूरीज अभी पूछ सकते हैं. अगर कोई 12-105 में कोई प्रॉब्लम है आपको कि क्यूरी है, तो प्लीज़ रेज योर हैंड, या डायरेक्टली रेज हैंड के बजाय आप अपने माइक को अनम्यूट करें और वो क्यूरी जो है वो पूछ सकते हैं. नो क्यूरीज? नो सर. ओके, सो मूविंग ऑन टू अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम 12-109. Okay, 12-109. You need to determine the horizontal velocity VA of a tennis ball which is being thrown from point A so that it just clears the net at point B. Also, you need to find out the distance S where this ball strikes the ground. So you are throwing a tennis ball from point A and it is following this trajectory from point A till point C. तो ये आपके पास वो बॉल की ट्रेजेक्ट्री गिवन है. इनिशियली यू आर गिविंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू दिस बॉल विच इज दिस वेलोसिटी VA. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज नॉट नोन टू यू. सो आपके पास VA जो है वो एज अ अननोन के तौर पे मौजूद है. दूसरा अननोन जो यहाँ मौजूद है वो ये है कि इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए जब ये बॉल पॉइंट C तक पहुँचेगी तो ये कितने डिस्टेंस S के ऊपर नेट से दूर जाके पॉइंट C को, ग्राउंड को हिट करेगी. तो यू नीड टू डिटरमिन दीज टू थिंग्स. किस तरह हमें सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करना चाहिए? जी कोई जवाब देना चाहे इस सोल्यूशन का कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए? सर ये जो so that it just clears the net at B है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि वो इस ट्रेजेक्ट्री को जब फॉलो कर रहा होगा तो बिल्कुल इस 3 फुट वाले पॉइंट के ऊपर से ये गुजरेगा, यानी कोलाइड किए बगैर, लेकिन बिल्कुल जस्ट अबव, यानी बिल्कुल उसके just ऊपर ऊपर. हो लेकिन ज़्यादा ऊपर. ऐसा नहीं होगा कि वो इस ट्रेजेक्ट्री को यहाँ से फॉलो करे जिसमें वो इस नेट को बहुत ज्यादा क्लियरेंस दे रहा हो. जस्ट अबव दिस 3 फुट नेट ये इसको क्लियर करेगा. ठीक है. सो किस तरह हमें सोल्यूशन करना चाहिए? कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट जो बता सके. सबसे पहले हमें बल्कि चलें सोल्यूशन से पहले अपना पहला स्टेप करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ओरिजिन डिफाइन करना है. अब इसमें चूंकि सारे के सारा मोशन अगर हम देखें तो सारे के सारा मोशन टूवर्ड्स द लेफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट होने का मतलब क्या है कि हम बजाय कन्वेंशनल XY कोऑर्डिनेट्स लेने के हम पॉजिटिव X एक्सिस टूवर्ड्स द लेफ्ट ले रहे हैं. उसका फायदा हमें क्या होगा
पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट लेने का कि हमें जहां जहां एक्स या एक्स नॉट आ रहा होगा हम उसके पॉजिटिव वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं रादर देन यूजिंग द नेगेटिव साइन विद दोज थिंग्स व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो एक तो ये बात कि हम कन्वेंशनल एक्स वाई के बजाय पॉजिटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट ले सकते हैं। दूसरा, ओरिजिन डिफाइन करने की मेरे पास दो चॉइसेस हैं। मैं अगर चाहूँ तो ओरिजिन इस ए पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो ओरिजिन इस पॉइंट डी पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट सी के ऊपर भी ओरिजिन डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग मैंने ओरिजिन अपना इस पॉइंट डी के ऊपर जो है वो डिफाइन किया है फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप चाहें तो पॉइंट ए के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। सो आई एम डिफाइनिंग द ओरिजिन एट पॉइंट डी, और मैं एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूँ वो पॉजिटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट, और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव अपवर्ड्स देता हूँ। अब ये बताएं कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारा वे ऑफ मेथड होना चाहिए फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई एक वॉलंटियर सर पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे ना, तो सर उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 की हाइट पे हम पहले वो डिफाइन कर लें अपने एक्सिस को, तो हमारे पास रेंज भी 21 फीट आ जाएगी और उससे हम वेलोसिटी निकाल लें पहले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सबसे पहले हम मोशन कंसिडर करें फ्रॉम पॉइंट ए टू बी रादर देन पॉइंट ए टू सी, और हम अपना फाइनल पॉइंट पॉइंट बी ले लें, और इस तक फिर हम कौन सी इक्वेशन लगा के वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं रेंज वाली इक्वेशन लगाता हूं तो रेंज वाली इक्वेशन कहती है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। इसमें मुझे टाइम भी नोन नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे किसी तरह टाइम पता चलेगा पॉइंट बी तक कि कितने टाइम में पहुंचा है, तब जो है वो मैं वेलोसिटी वी ए निकाल सकता हूँ। ऐसे ही है? यस सर। तो वो टाइम कैसे फाइंड करेंगे? एनी अदर वेलोसिटी एट पॉइंट बी ढूंढ लें। वेलोसिटी एट पॉइंट बी ढूंढ लें, वर्टिकल। अच्छा, वो कैसे ढूंढेंगे और उसका फायदा क्या होगा? 2as is equal to b square minus u square करके, वो वाला जो फॉर्मूला था, और फिर उसको डाल के वो दूसरे टाइम वाले में कर लेंगे। कोई आसान सोल्यूशन नहीं है? पता नहीं सर। और कोई वॉलंटियर जो कि थोड़ा सा आप सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं वी स्क्वायर यानी वाई हॉरिजॉन्टल मोशन की बजाय वर्टिकल मोशन पे पहले अप्लाई कर लूं, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई माइनस वाई नॉट ए से बी तक। तो जी सर। तो उसमें वी नॉट वाई 0 हो जाएगा, वाई नॉट मुझे पता है, तो वहां से मुझे वी वाई मिल जाएगा पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते। उस वी वाई का मैं क्या करूंगा जी? मुझे वी वाई मिल गया पॉइंट बी का, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी, उससे मैंने आगे किस तरह प्रोसीड करने हैं? उससे सर टाइम निकालना होगा फिर। ओके, टाइम के लिए मैं क्या करूंगा? वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। जी हाँ, वो एक था s is equal to ut plus 1/2 at square, इस तरह करके जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो आप बता रहे हैं, जो कि करेक्शन मैं कर दूं, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसमें तो अगर मुझे वी वाई ना भी मिला होता तो भी ये फॉर्मूला चल जाना था। तो why I have found that वी वाई पर नहीं लेते फिर। नहीं लेते फिर। चलें ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सो इनिशियली हम कर क्या रहे हैं कि वी आर डिफाइनिंग द ओरिजिन एट पॉइंट डी। सो हमने ओरिजिन डिफाइन कर दिया पॉइंट डी पे, और जो डायरेक्शन हमने एक्सिस का डिफाइन किया पॉजिटिव लेफ्ट और पॉजिटिव अपवर्ड, एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर द मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन हमने कंसिडर किया। वर्टिकल मोशन की जब मैं इक्वेशन लगाता हूँ y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, चूंकि ओरिजिन मैंने यहाँ डिफाइन किया है, सो y नॉट वुड बिकम इक्वल टू 7.5 एंड y वुड बी इक्वल टू 3/4। तो y और y नॉट की वैल्यूज मैंने यहाँ प्लेस कर दी हैं 3 एंड 7.5। अगर यही मैंने सपोज ओरिजिन डिफाइन किया होता a के ऊपर, तो फिर क्या हो जाना था? फिर मेरे पास y जो है वो बन जाना था कितना? अगर मैं ओरिजिन ए पे डिफाइन करता तो वाई नॉट क्या हो जाता? 0। वाई नॉट वुड बी इक्वल टू 0। वाई कितना हो जाता? -4.5। वाई आपके पास ये होता विच इज -4.5। तो यहाँ भी वही हो रहा है, जब आप 7.5 को इधर ले जाएंगे तो -4.5 ही बचेगा। तो चॉइस आपकी अपनी है, आप ए पे डिफाइन कर लें या सी पे डिफाइन कर लें। फॉर द टाइम बीइंग मैंने ओरिजिन को जो है वो डिफाइन किया हुआ है एट पॉइंट डी। सो यहाँ ओरिजिन मैंने डिफाइन किया, इसके हिसाब से y मेरे पास 3 आता है
और y नॉट मेरे पास जो है वो 7.5 आ जाता है। सो चॉइस आपकी अपनी है, आप कहाँ ओरिजिन को प्लेस करना चाह रहे हैं। बहरहाल 3 और 7.5 मेरे पास y और y नॉट आ गया आफ्टर डिफाइनिंग द ओरिजिन एट पॉइंट D। जहां तक ताल्लुक v नॉट y का है, तो चूंकि द प्रोजेक्टाइल और द बॉल इज बीइंग लॉन्च्ड विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सो y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का 0 है, जिसकी वजह से आपकी ये टर्म 0 हो गई है। हाफ gt स्क्वायर, चूंकि हम यूनिट यूज कर रहे हैं फिट वाले, तो आपने रेलिवेंट वैल्यू ऑफ g पुट करनी है, विच इज 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सो वंस यू सॉल्व इट, the time of flight would comes out to be 0.5287 seconds from A to B, since we are considering the motion from point A to point B. Now, once you have determined that time, now you are going to apply the horizontal motion equation. Left positive आपने लिया x equal to x naught plus v naught xt. अब यहाँ x आपके पास क्या हो जाएगा, x बेसिकली आपका ये वाला डिस्टेंस है जो कि ऑलरेडी गिवन है आपको 21, सो 21x हो जाएगा, x नॉट आपके पास 0 होगा, va अननोन है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं विच इज 0.5287. सो वंस यू सॉल्व इट, द वेलोसिटी वुड कम्स आउट टू बी 39.72 feet. So the initial velocity va is going to be 39.72 feet, with which this ball is going to be thrown from point A. Okay, now once you have found this velocity, for the next unknown, which is this s, what should we be using? कौन सी इक्वेशन है जिसको हम यूज कर रहे होंगे? कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट जो बताना चाहे। जी, कौन बताना चाह रहे हैं आप सोल्यूशन? टाइम तो आपने फाइंड कर लिया, va फाइंड कर लिया, बट हाउ टू डिटरमिन s? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कोई एक स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट कर सकता है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि हमने ये दो चीजें डिटरमिन कर ली हैं, विच इज टाइम एंड va, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें साथ साथ ये s भी जो है इसको डिटरमिन करना है। सो इट इज अननोन टू अस। हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन दिस s? सर A से C तक हॉरिजॉन्टल मोशन अब कंसीडर करेंगे। अब हम A से C तक का मोशन कंसीडर कर लें, ओके, और हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की तो फिर यही इक्वेशन बन जाती है ना, x इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट xt। क्या आपको TAC नोन है? टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम A टू C, ये जो आपने टाइम फाइंड किया, इट इज TAB विच इज फ्रॉम A टू B, बट फॉर यूजिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम A टू C यू नीड TAC। वो कैसे पता चलेगा? तो पहले TAC मालूम कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये पहले से मालूम किया हुआ है AB। That's correct. So what we are going to do is we are now going to consider the motion from A to C, और हम उसके ऊपर उसी तरह वही इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, y इक्वल टू y नॉट v नॉट yt हाफ ACT स्क्वायर। लेकिन अब y और y नॉट क्या हो जाएंगे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट वैल्यूज देखूं तो y नॉट तो जो है वो मेरे पास वही बनेगा विच इज 7.5, लेकिन पॉइंट C, अब ये वाला पॉइंट है, इस पे y मेरे पास 0 हो जाएगा। सो y वुड बिकम 0, y naught would be 7.5, v naught y would still be equal to 0, और आपके पास हाफ ACT square आ जाएगी। So once you solve it, you can see that time from A to C would be 0.6825, जबकि पिछले केस में 0.52 था। So इसको टोटल 0.68 seconds लगे हैं from reaching from point A till point C. Now once you have found this time, now you can apply the range equation. उसमें फिर आपका x बन जाएगा जो कि आपका ये डिस्टेंस है, विच इज 21 प्लस s। सो x वुड बिकम 21 प्लस s। बाकी आपके पास चीज़ें नोन है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास ऑलरेडी नोन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पिछले स्टेप में नोन हो गई थी। तो वंस यू सॉल्व इट, दिस s वुड कम्स आउट टू बी 6.109 फीट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप यहाँ अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी जो है वो पूछ सकते हैं। जी, any question relevant problem? No query? So shall we move to the final problem of this topic? Okay, so moving on to the final problem of this topic, which is problem 12-110. Again, it is observed that the skier leaves the ramp at point A at an angle of 25 degrees with the horizontal. So this skier जो है,
it leaves from point A with an initial velocity which is VA. The magnitude of this initial velocity is not known to us. However, the angle is known to us as 25 degrees. If the particle or the scar strikes the ground at point B, so this is the point where he strikes at the ground at point B, you need to determine what is going to be the magnitude of this initial velocity VA as well as the time of flight, which is TAB. The distance is given to you as 100 मीटर. ये स्लोप जो है वो 100 मीटर्स गिवन है आपको, लेकिन इस स्लोप का एंगल देने के बजाय आपको एक स्मॉलर ट्राइंगल गिवन है 3, 4, 5, जिसकी मदद से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं, या चाहें तो आप एंगल निकालने के बजाय इसी स्मॉलर ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं इन योर वेरियस कोऑर्डिनेट्स. अच्छा, अब ये बताएं कि किस तरह हम इस सोल्यूशन को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. कोई एक वॉलंटियर. जी, anyone volunteer who want to define how to solve this 12-110? अब्दुल्ला लियाकत, आप तक आवाज आ रही है? How we are going to solve it? अब्दुल्ला लियाकत. ओके, अब्दुल्ला लियाकत मेरे ख्याल में कहीं और है. अहमद दीन, how we are going to solve it? जी अहमद दीन. यस सर. किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सर रेंज से कर सकते हैं, रेंज भी गिवन है, थीटा भी गिवन है. देखिए, रेंज की इक्वेशन में जो एक अहम चीज है जो रेंज की इक्वेशन में आती है वो टाइम है. चूंकि टाइम हमें नोन नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी तरह हम इस टाइम को फाइंड करेंगे ना, उसके बाद फिर हम रेंज की इक्वेशन यूज कर सकते हैं. वो टाइम कैसे डिटरमिन करेंगे? गुलरेज रहमान, वो टाइम का कुछ आइडिया है कैसे डिटरमिन किया जा सकता है टाइम? हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे. देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन की तो एक ही इक्वेशन है रेंज वाली, उससे तो टाइम हमें नहीं मिल रहा, तो क्या वर्टिकल मोशन कंसीडर कर लेंगे? और अगर वर्टिकल करेंगे तारिक, तो कौन सी इक्वेशन होगी वर्टिकल की जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं? तो वही जो पहले यूज की थी, y = y0 प्लस ओके, अगर मैं यूज करता हूँ y = y0 प्लस v0 yt प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो उसमें v0 y इन्वॉल्व है जिसमें va sin 25 आ रहा होगा, और टाइम इन्वॉल्व है, तो अगेन va भी अननोन है, टाइम भी अननोन है. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? अब वो 2gs = v² - u², वो वाला करेंगे. अच्छा, चलें सारे ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं. अगर हम यूज करते हैं vy² = v0 y² प्लस 2g y - y0, तो इसमें vy आ रहा है. Do we know the value of vy, which is the y component of final velocity? अब ये जवाब काइंडली ना दीजिएगा कि वो टकरा गया तो vy 0 हो जाएगा. इसका नहीं होता. No, we are going to consider up till that point just before striking the ground. सही. So कोई और ऑप्शन बताएं. सारे ऑप्शन हमने ट्राई कर लिए हैं, वैसे सोल्यूशन आएगा कहाँ से फिर? सर वर्टिकल मोशन a to b कंसीडर करें, हाइट तो गिवन है और थीटा भी गिवन है सर. vy के लिए लेकिन थीटा कर देंगे. थीटा तो गिवन है लेकिन v अननोन है. सो मेरे ख्याल में हमने सारे तुक्के चला लिए हैं, हर तरह की इक्वेशन अप्लाई कर ली है, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा. थोड़ा सा दोबारा गौर करें. Is there any equation which has been left जो कि हमने ट्राई ना की हो? Or else how can we get to the solution of this problem? चलिए मैं किसी से सवाल कर लेता हूँ. उमर सजाद, आप मौजूद हैं? उमर सजाद, कैन यू आंसर दिस कि किस तरह हम सोल्यूशन कर सकते हैं? सारी इक्वेशनें तो हमने अप्लाई कर ली हैं. चलिए, थोड़ा सा इसमें हमने करना क्या होगा कि वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द ओरिजिन. तो सबसे पहले तो हम ओरिजिन जो है वो डिफाइन करते हैं. ओरिजिन डिफाइन करने के लिए लेट अस डिफाइन द ओरिजिन एट सम कन्वीनियंट लोकेशन. मेरे हिसाब से इनिशियल पॉइंट इज द मोर कन्वीनियंट लोकेशन, तो हम यहाँ अपना ओरिजिन जो है वो प्लेस कर लें, और उसके बाद फिर हमें कुछ साइमल्टेनियस सोल्यूशन जो है वो देखना पड़ेगा इक्वेशंस का. साइमल्टेनियस सोल्यूशन से क्या मतलब है कि सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करते हैं
तो हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। अब इसमें x क्या हो जाएगा, x एक तरह से ये डिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमें 100 स्लोप गिवन है या 100 मीटर ये स्टार्टेड डिस्टेंस गिवन है, और ये छोटा ट्राइंगल गिवन है। इसकी मदद से 100 इंटू 4/5 हमारा x हो जाएगा। x नॉट 0 है बिकॉज आई हैव प्लेस्ड माई ओरिजिन हेयर। v नॉट x इज va cos 25 एंड टाइम इज t। सो हमने किया क्या है कि हमने टाइम निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी va। उसके बाद वर्टिकल मोशन हमने कंसिडर की है और इक्वेशन है y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं कि y हमारे पास क्या हो जाएगा, y हमारे पास हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस जो कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स प्लस दिस डिस्टेंस विच इज 100 इंटू 3/5। सो ओवरऑल मेरे पास 4 प्लस 100 इंटू 3/5 y डिस्टेंस होगा। लेकिन चूंकि मेरा y कोऑर्डिनेट फाइनल पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से डाउनवर्ड लाई करता है, सो ये दोनों चीजें मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ आएंगी। सो एक तरह से ये -4 माइनस 100 इंटू 3/5 होगा। y नॉट 0 है बिकॉज इनिशियल पॉइंट के ऊपर ही मैंने ओरिजिन डिफाइन किया हुआ है। v नॉट y आ गया va sin 25t और हाफ gt² मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैंने किया क्या है कि आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो टाइम की जो वैल्यू है वो मैंने इक्वेशन 1 से इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी है, जिसको मैंने जब सॉल्व किया तो चूंकि सारा के सारा va की टर्म्स में आ गया तो एक ही अननोन था। वंस आई सॉल्व इट va कम्स आउट टू बी 19.46 एंड टाइम कम्स आउट टू बी 4.45 सेकंड। तो जरूरी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन से सोल्यूशन मिल जाए। मे बी आपको उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, अगर दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो प्रोबेबली आप फिर साइमल्टेनियस सोल्यूशन की तरफ जो है वो जाते हैं, जिस तरह इस प्रॉब्लम के केस में आपने इन दोनों वेरिएबल्स के लिए साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो कि एक तरह से ये हमारी इक्वेशन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए अपना सोल्यूशन जो है वो अचीव किए, va फाइंड किए और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आपने फाइंड किए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई चीज़ जो आपको ना समझ आई हो काइंडली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो आपकी, आप जो है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन आस्क द क्यूरी और क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहें। क्लियर है सबको? कोई एक स्टूडेंट जवाब दे दे। क्लियर है सबको? Okay, so with this, the motion of projectile is now finished, and inshallah in tomorrow's lecture we are going to start with normal and tangential coordinates kinematics. So हम करेंगे क्या कि अगले स्टेप में या कल के लेक्चर में हम नॉर्मल और टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स की काइनेमेटिक्स करेंगे, जिसमें हम काइनेमेटिक्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो बजाय किसी मैथमेटिक्स में जाने के हम सबसे पहले वो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये डिफाइन होते हैं, किस तरह आप इनमें यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर हम इसकी काइनेमेटिक इक्वेशंस की जो है वो बात करेंगे। सो इंशाल्लाह कल हम ये पूरा नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और अगले वीक हमारी कोशिश होगी कि ये आखिरी जो 3 टॉपिक्स हैं इनको कवर करते हुए हम तकरीबन चैप्टर नंबर 12 से जो है वो फारिग हो जाएं, ताकि इसके बाद फिर हम काइनेटिक्स पार्टिकल की जो है वो डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के हवाले से, प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं।